students, in the previous video we have discussed about some important topics related to structures, like how we can store the structure elements, how the structure elements are stored into the memory. Then we have discussed about arrays and structures, how they are interrelated with each others, and how we can make the arrays of the structure elements, and that we have also discussed with the help of a program. Now we are moving on to the next topic, and that is your important features of the structures. The first feature is the value of the structure variable can be assigned to another structure variable of the same type using the assigned operator. That means once you have declared a structure variable, that structure variable you can assign to the another structure variable. That means, but the condition is that that structure variable of the same type. So with the help of assignment operator that we can do. So let us we see with the help of example. यहाँ पे हम example देख लेते हैं. हमारे पास एक main function है. In this main function we have created a structure with the help of struct keyword. This is struct keyword. Then we are going to use the structure name, that is your employee. Then we have taken the three structure elements: character name, then integer age, and then float salary. Now we are going to make a structure variables. How we can make the structure variables? First of all, we are going to use this data type, and the data type is struct employee. तो यहाँ पे हमने एक struct employee नाम का हमने data type ले लिया. Then we are going to make a variable. यहाँ पे variable का नाम क्या है? E1 equal to, and we are going to assign the values to these elements. So here the character name 10. The name is character array, so we can assign here the string, and we are going to assign the your string is Sanjay. Sanjay is the string name. Now second element is age, so we are giving here the value 30. Then the salary is of float type, so we are giving here the float type value, decimal value. So हमने यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ को असाइन किया है. तो यहाँ पे जो E1 है एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है जो कि एक कांस्टेंट बन गया क्योंकि हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर दिया. Now we can create the another structure variable again with the help of data type. So user defined type क्या है हमारे पास? struct employee, then E2, E3. तो हमारे पास ये अनदर दो वेरिएबल्स हैं, and we can copy of these values of the E1 to the E2. How we can do that? Like this one, we are going to use the predefined function string copy, strcpy. यहाँ पे हम एक predefined function यूज कर रहे हैं. string copy नाम का फंक्शन है जिसका काम क्या होता है? एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में असाइनमेंट करना. So how we can assign the value? So first of all, we are going to take here the first argument E2 dot name, E1 dot name. यहाँ पे जो E1 के corresponding वेरिएबल के corresponding जो वैल्यू है नेम की, वो किस में कॉपी हो जाएगी? E2 वेरिएबल्स के नेम के अंदर, क्योंकि E2 भी क्या है? ऑफ द सेम डेटा टाइप. E1 और E2 एंड E3 इन सब की डेटा टाइप क्या है? स्ट्रक्ट एम्प्लॉय. तो जो भी स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हैं अगर उनकी सेम टाइप है तो यू कैन असाइन the values of the one variable value to the another variable है. तो यहाँ पे हमने E1 का नेम जो था वो कॉपी किस में कर दिया? E2 के नेम के अंदर. तो जो E2 जो वेरिएबल है उसके लिए नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी? संजय. सिमिलरली वी कैन आल्सो असाइन द एज. यहाँ पे E1 के लिए एज की वैल्यू कितनी है? 30. और E2 के लिए एज की वैल्यू क्या है? अभी ब्लैंक है, अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं है. लेकिन जैसे ही आप इक्वल ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? यू कैन असाइन द वैल्यू E1 डॉट एज, यू कैन असाइन द वैल्यू टू द E2 डॉट एज. सिमिलरली E1 डॉट सैलरी यू कैन असाइन टू द E2 डॉट सैलरी. सो वी आर कॉपिंग ऑल द एलिमेंट्स एट द डिफरेंट वेज. सो यहाँ पे हमने क्या किया? वन बाय वन एलिमेंट्स को कॉपी किया. यहाँ पे हमने जब स्ट्रिंग को कॉपी करना था हम वी कैन नॉट डायरेक्टली असाइन द वैल्यू E2 डॉट नेम इक्वल टू E1 डॉट नेम बिकॉज दिस एन करेक्टर एरे. बट इन दिस केस वी आर गोइंग टू यूज द प्री डिफाइंड फंक्शन विच इज स्ट्रिंग कॉपी. स्ट्रिंग कॉपी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कॉपी कर सकते हैं वैल्यूज को. और यहाँ पे इंटीजर टाइप है तो E1 एज की हेल्प से हमने E2 डॉट एज में कर दिया, E1 डॉट सैलरी से E2 डॉट सैलरी कर दिया. इफ़ यू वांट टू कॉपी ऑल द एलिमेंट्स एट वन गो तो आप डायरेक्टली भी असाइन कर सकते हो, लाइक दिस वन E3 इक्वल टू E2. तो यहाँ पे क्या होगा? इन दिस केस जो E2 की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी एज इट इज हर एलिमेंट्स में क्या हो जाएगी? कॉपी हो जाएगी. एंड वी कैन प्रिंट इट लाइक दिस वन. तो पहले हमने E1 की जितने भी E1 के क्रॉसपॉन्डिंग वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू है उसको हमने प्रिंट कराया. फिर हमने उसके बाद E2 के क्रॉसपॉन्डिंग कराया. देन हमने E3 के क्रॉसपॉन्डिंग को प्रिंट कराया. और ये हमारा आउटपुट है. दिस इज संजय
30 एंड देन हमारे पास यहाँ पे सैलरी प्रिंट हो गई, E1 की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी, देन E2 की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी, एंड देन E3 की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज थी. नाउ वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम. सो हम इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द VS कोड, देन क्लिक ऑन द फाइल एंड देन क्रिएट न्यू फाइल. सो न्यू फाइल हमने नेम दे दिया. देन वी कैन गिव हेयर द struct2 डॉट C. So it will ask you to save your file. So I'm just going to using default location, and default location the C programming, and then create file. यहाँ पे हम वही प्रोग्राम करेंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे एंड देन वी विल डिफाइन द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स एंड देन वी विल असाइन द वैल्यूज वन बाय वन एज वेल एज all the copies of the all element at the one go. So first of all we need to define here the header file hash include stdio.h. Then we need to specify main function. So this is your main function. In this main function we are going to create structure. So this is the structure name struct employee. देन हमने क्या करना है, हमने एक नेम नाम का एक वेरिएबल ले लिया जो कि एक एरे है. देन हमने अनदर एलिमेंट लिया एज, एक और एलिमेंट ले रहे हैं फ्लोट सैलरी. नाउ स्ट्रक्चर को हमने टर्मिनेट कर दिया. देन वी कैन क्रिएट द वेरिएबल्स. वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए पहले हमें डेटा टाइप लिखनी है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, दैट इज योर स्ट्रक्ट एम्प्लॉय. देन E1. तो E1 क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है और यहाँ पे हम वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं. तो एक ही तरह से ये कांस्टेंट स्ट्रक्चर वेरिएबल बन जाएगा जहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर रहे हैं. तो यहाँ पे करेक्टर नेम, सो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ. आई एम गोइंग टू गिव हियर द नेम अजय. देन वी आर गोइंग टू गिव द एज हियर. सपोज दिस एज आई एम राइटिंग हियर द 32. देन सैलरी आई कैन गिव हियर. सो दिस इज सैलरी आई एम राइटिंग हियर. सो सपोज दिस इज 450 एंड देन टर्मिनेटर. तो यहाँ में हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज किए हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल के एलिमेंट्स के लिए, जहाँ पे नेम को जो E1 के करस्पॉन्डिंग जो नेम है उसकी वैल्यू क्या है, अजय है, और E1 के करस्पॉन्डिंग एज की वैल्यू कितनी है, 32 है, जो कि इंटीजर टाइप है. यहाँ पे E1 के करस्पॉन्डिंग जो सैलरी, यहाँ पे हम डेसिमल वैल्यू भी दे सकते हैं. तो वी आर गोइंग टू गिव असाइन द डेसिमल वैल्यू. तो यहाँ पे E1 के करस्पॉन्डिंग सैलरी की वैल्यू कितनी है, 450.34. नाउ वी कैन क्रिएट द अनदर वेरिएबल्स. हम यहाँ पे और वेरिएबल भी क्रिएट कर लेते हैं. लाइक हमने दो वेरिएबल्स और क्रिएट किए, E2 और E3. Now we have the two ways by which we can assign the values of E1 elements value to the E2, and another way is to directly copying all the element at the one go. अगर आप कॉपिंग करना चाहते हो ऑल एट वन गो तो आप डायरेक्टली वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर दें. जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन डू दैट E2 इक्वल टू E1. तो यहाँ पे क्या होगा, E1 के करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं, नेम एज एंड सैलरी, उनकी वैल्यूज किसी में कॉपी हो जाएगी E2 के एलिमेंट्स के अंदर, नेम एज और सैलरी. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, E1 और E2 की टाइप सेम होनी चाहिए. यहाँ पे E1 की टाइप क्या है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, E2 की टाइप क्या है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय. तो यहाँ पे क्या होगा, पूरे वेरिएबल्स की जो वैल्यू है, यानी कि जो भी वेरिएबल्स की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू एट वन गो पे कॉपी हो जाएगी. लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि अगर हम वन बाय वन करना चाहते हैं, सपोज हम E1 के करस्पॉन्डिंग E2 के नेम के अंदर वैल्यू एंटर कराना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, E1 के करस्पॉन्डिंग एज की जो वैल्यू है E2 के एज में कराना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं. तो लेट अस बी सी. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ स्ट्रिंग वी मस्ट हैव टू बी यूज दिस फंक्शन हेयर. तो अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, E2 डॉट नेम कॉमा E1 डॉट नेम. अब जो strcpy प्रीडिफाइंड फंक्शन है वर्क कैसे करता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन और इसे बोलते हैं हम सोर्स. तो यहाँ पे E1 डॉट नेम, E1 डॉट के नेम के करस्पॉन्डिंग अजय वैल्यू जो है सोर्स में है, और ये क्या आपका डेस्टिनेशन. तो डेस्टिनेशन क्या है, E2 डॉट नेम. जहाँ पे हमने वेरिएबल E2 क्रिएट किया था उसके लिए नेम की कोई वैल्यू नहीं थी, एज की कोई वैल्यू नहीं थी, सैलरी के लिए कोई वैल्यू नहीं थी. तो यहाँ से E1 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी E2 के अंदर. नाउ इफ यू वांट टू कॉपी द
इवन एज वैल्यू, इवन के करस्पॉन्डिंग एज वैल्यू कितनी है 32, और आप उस किस में डालना चाहते हो, यू कैन इफ यू वांट टू इंसर्ट इनटू द E2 डॉट एज, तो डायरेक्टली यू कैन इंसर्ट इट, तो E2 डॉट एज इक्वल टू E1 डॉट एज। सिमिलरली अगर आप सैलरी कॉपी करना चाहते हैं तो E2 डॉट सैलरी इक्वल टू E1 डॉट सैलरी। यहाँ पे हमने 1 बाय 1 एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को कॉपी किया है। यही चीज़ जो है हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ कॉपिंग ऑल द एलिमेंट्स। सो आई एम राइटिंग हियर द कमेंट कॉपिंग ऑल द एलिमेंट्स एट वन गो। सो हाउ वी कैन डू दैट, डायरेक्टली आप क्या करो, E3 हमारे पास ब्लैंक एक वेरिएबल है, उसके अंदर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या कर रहे हैं, E2 की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। नाउ वी कैन प्रिंट ऑल दीज वैल्यूज, हाउ वी कैन डेट दैट, प्रिंट हैव देन स्लैश एन, देन हमें क्या करना है, नेम, नेम क्या एक स्ट्रिंग टाइप का है, तो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, परसेंटेज एस, फिर हमारे पास एज किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की, देन हमारे पास सैलरी किस टाइप की है, फ्लोट टाइप की, तो हमने 3 फॉर्मेट स्पेसिफाई लिए, परसेंटेज एस, परसेंटेज ई, परसेंटेज एफ, देन वी कैन प्रिंट E1 डॉट नेम, E1 डॉट एज, then E1 dot salary. Similarly we can also print, so this is your printf and then slash n, and यहाँ पे इसके corresponding अगर हमें करना है, again same percentage s, percentage d, percentage f, then comma E2 dot name, comma E2 dot age, then E2 डॉट सैलरी। थर्ड अगर हम E3 के लिए करना चाहते हैं, जस्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको पेस्ट करेंगे, एंड देन वी कैन चेंज रिप्लेस विद द E3, E3 डॉट नेम, E3 डॉट एज, E3 डॉट सैलरी। सो दिस इज द प्रोग्राम in which what we are seeing, we are just watching here how we can copy or how we can assign of the structure variable to the another structure variable of the same type using the assignment operator. हमने फाइल को सेव किया and then we are going to execute this program. So this program is executing and you can see the terminal here. This is compiling our program. Compiled successfully. So compiler has compiled it successfully and you can see the output. Output is first it is printing 32. यहाँ पे print क्या कर रहा है, 32 print कर रहा है. Then it is first it is printing the name for the E1. E1 के लिए name क्या है, अजय है. Then it is printing 32. Then it is printing your salary value 450.33996. Similarly for the E2 and similarly for the E3. We can also print it by giving space here. How we can do that, and we can just give here the tab here slash n, then slash t, then we can also give here the slash t. Similarly यहाँ पे हम क्या करते हैं, slash t for the tab. जनरली ये क्या है, एक तरह से फॉर्मेटिंग है, we can apply it here. Now we are going to again compile it. So just compile, compiled successfully, and you can see the output corresponding to E1, E1 dot name Ajay, E1 dot age, then E1 dot salary. Similarly for this one. So यहाँ पे आपने देखा होगा कि कैसे हम एक 1 by 1 जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स के एलिमेंट्स की वैल्यू है 1 by 1 कॉपी कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स एट वन गो. Now come to the next topic, and the next important feature of the structure is one structure can be nested within the another structure. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें कि एक नेस्टेड स्ट्रक्चर होता क्या है, जब हम एक स्ट्रक्चर बनाएं, दूसरा स्ट्रक्चर बनाएं और दूसरे स्ट्रक्चर को पहले वाले स्ट्रक्चर का पार्ट बना दें, या फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को हम सेकंड का पार्ट बना दें, और उसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर. अब नेस्टेड स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है, एक एग्जांपल से देख लेते हैं. दिस इज स्ट्रक्ट एड्रेस
हमने एक स्ट्रक्चर बनाया एड्रेस एंड देन वी हैव टेकन द 3 एलिमेंट्स कैरेक्टर फोन, कैरेक्टर सिटी एंड देन इंटीजर पिन। यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर को क्लोज किया। देन वी आर गोइंग टू मेक द अनदर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय का क्या हो सकता है, एक नेम हो सकता है, तो वी हैव टेकन अदर एलिमेंट कैरेक्टर नेम। देन वी हैव टेकन द एड्रेस, स्ट्रक्ट एड्रेस ए। बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक और स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है एड्रेस, वी आर मेकिंग दिस पार्ट, मेकिंग दिस स्ट्रक्चर एज ए पार्ट ऑफ द सेकेंड स्ट्रक्चर। तो अब हमने एड्रेस को जो था, उस स्ट्रक्चर के एड्रेस को हमने क्या किया, स्ट्रक्चर एड्रेस को उसका एक वेरिएबल क्रिएट किया एंड वी हैव मेक देम एज ए पार्ट ऑफ द अनदर स्ट्रक्चर विच इज एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट एम्प्लॉय लिया, यहाँ पे कैरेक्टर नेम लिया एंड देन वी आर गोइंग टू मेक द वेरिएबल। अब वेरिएबल कैसे बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप। डेटा टाइप कौन सा ले रहे हैं, स्ट्रक्ट एड्रेस। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट एड्रेस क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, एक तरह से स्ट्रक्चर डेटा टाइप है एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट द वेरिएबल ए। तो ये जो स्ट्रक्चर एम्प्लॉय है, इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, फर्स्ट एलिमेंट तो होगा नेम, सेकेंड एलिमेंट कौन सा होगा वो डिपेंड करता है जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया है, किस स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट किया, हमने कौन से स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट किया है, एड्रेस का। तो सेकेंड एलिमेंट कौन सा होगा, फोन, थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा, सिटी, और फोर्थ एलिमेंट कौन सा होगा, पिन। बट जो एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग के डायरेक्टली जो हमारे पास एलिमेंट है वो कौन सा, नेम, और इनडायरेक्टली कौन कौन से हैं, फोन, सिटी और पिन। अब हम इस चीज़ को देख लेते हैं कैसे इसको वर्कआउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, अगर मान लो आपको किसी भी एम्प्लॉय का सारी डिटेल गेट करनी है, उसका नेम, फ़ोन नंबर, सिटी एंड पिन, तो उसके लिए आप क्या करोगे, किसका वेरिएबल क्रिएट करोगे, यू विल क्रिएट द वेरिएबल ऑफ एम्प्लॉय। तो कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले डेटा टाइप स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, देन ई इक्वल टू नेम हमने असाइन किया अजय, देन वी हैव टेकन हेयर द, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हमने डायरेक्टली असाइन किया है क्योंकि ई जो है, जो हम एम्प्लॉय का जो हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इट इज़ कंपोज ऑफ द एलिमेंट्स नेम, फोन, सिटी एंड पिन। तो यहाँ पे नेम क्या है हमारे पास, अजय दे दिया हमने, और फोन नंबर हमने ये दे दिया एंड देन वी हैव गिवन हेयर द सिटी एंड देन वी हैव गिवन हेयर द पिन। सो पिन इज 10। नाउ सपोज इफ यू वांट टू प्रिंट द वैल्यूज ऑफ दिस ई एलिमेंट्स को आप प्रिंट करना चाहते हो, तो हाउ यू कैन प्रिंट इट। तो आप क्या करोगे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट लोगे, देन यू विल यूज दिस नेम, नेम इक्वल टू परसेंटेज एस, फोन इक्वल टू परसेंटेज एस, वी हैव टेकन द करेक्टर टाइप फोन नंबर, तो करेक्टर टाइप फोन नंबर लिया है इसलिए हमने परसेंटेज एस यूज़ किया। देन ई डॉट नेम, ई के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल एम्प्लॉय का वेरिएबल कौन सा है, ई, तो ई डॉट नेम तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका क्या एक डायरेक्ट एलिमेंट है। बट अगर आप फोन, सिटी और पिन को एक्सेस करना चाहते हैं विच एन इनडायरेक्ट, और उनको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू यूज द डॉट ऑपरेटर ट्वाइस, आपको 2 बार डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल का नेम फॉर द एम्प्लॉय इज ई, देन ई डॉट वी नीड टू एक्सेस द एड्रेस, तो एड्रेस के करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन सा है, ए, तो ई डॉट ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा है हमारे पास एलिमेंट, फोन। तो इस हिसाब से हम ट्वाइस वी हैव यूज दिस डॉट ऑपरेटर बाय विच वी कैन एक्सेस द फोन। सिमिलरली इफ यू वांट टू एक्सेस द सिटी एंड पिन, फिर ज़रा कैसे करेंगे, प्रिंट एफ सिटी पिन ई डॉट ए डॉट सिटी कॉमा ई डॉट ए डॉट पिन। So this is the structure within the structure and how we are accessing the elements of the structure with the help of using the twice dot operator. So in above dot operator is used twice for accessing the elements of the structure which is the part of the another structure. So ये हमारे पास एक another topic था that is called nested structure. So we can also see with the help of a program. So go to this Visual Studio Code, then click to the file new, and we are going to make the nested structure. So nest underscore struct dot c. Now we need to include header file hash include stdio.h, then main function. So this is your integer main. In this main we are going to create a structure address. In this address we are going to take here the phone number, so this is your character type phone number, and we are taking here the 10 character type,
then we are going to take the city, and city I am giving the 20, and then integer pin. So we have taken here the integer type pin, and then we are going to close this structure. Then another structure we need to create. This another structure is employee. Then in this structure, what we need to, we are just going to take the name. So this is a name. Then we are going to create here the structure variable of the address, so that it become the nested structure. अब जब ये एड्रेस जो है ये स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेस्टेड स्ट्रक्चर. हम कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्ट देन एड्रेस देन ए. Now it's become the nested structure. Once you have created the nested structure, we can access the elements. First of all, we need to create the variable, and how we can create, struct employee. This is your I am taking the variable data type. Variable is e equal to, then we are going to assign the value. This is your Ajay. Then we are going to character value. This is number I have taken here. Then I am going to assign here the city. Then I am going to assign the pin. Now we need to print. So कैसे हम print करेंगे, with the help of printf statement. This is your /n. Then we are taking here the name of the employee, name equal to %s. Then we can print here the font. I'm going to use here the /t for the tab font. Font number equal to %s. Then comma e have created e dot name, comma e dot a dot font. Now you can see that in the Visual Studio Code, when we are going to use e dot, it is only showing the name. Why it is showing the name? Because e is the variable of the employee, and employee is containing the single element name, but it is also containing the another element of type structure address. So you can see that this is e dot name, but e के corresponding दो ही elements हैं, that is a name and a. A is the struct address employee. Now suppose I am going to use a, then dot I am going to use, you can see the three elements, city, font and pin, which is the elements of the address. तो यहाँ पे e dot a dot जैसे ही आप करोगे तो आपको city दिखाएगा, font भी दिखाएगा and pin भी दिखाएगा. तो we are going to take font number, so this is font and then terminate. Similarly, if you want to print here, this is printf. Then we are going to display here the city. So this is your city equal to %s. Then we are going to take here the tab /t. Then this is your pin equal to %d. Then comma, we can access e dot. Now you can see that only one element is name, but we need to access the city. हमें city को access करना है, तो हम क्या करेंगे, structure address जो हमारे पास जो हमने variable create किया था, which is the nested structure, तो e dot a dot, and then you can access here the city. This is city. Similarly, e dot a dot, and then you can access the pin, and then done. So this program has been completed. Just save it. So this is the program of the nested structure. Then execute this program. So once you will execute this program and the program has been compiled successfully, and you can see the output. It is printing name equal to Ajay and phone number. Then it is printing the address. So हमने यहाँ पे क्या क्या print किया था, name, this is your e dot name, that is your Ajay. Then we have printed the name, phone number is this one. Then we have printed the city, so city equal to Rohtak, and then we have printed the pin, so this is pin equal to 10.
सो ये नेस्टी स्ट्रक्चर का हमारे पास प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने नेस्टी स्ट्रक्चर को देखा है कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं. आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, and in the next video we will discuss further the most important topic, and that is your passing structure to a function, how we can pass the structure to a function. If you really like my videos, please share to the others and subscribe to my channel. Thank you.